Hey YouTube, thanks for visiting. So this is the lecture 2 of the general aptitude practice of chapter wise general aptitude practice, okay, for the upcoming CSR NET. And in this session we are going to discuss the questions from average problem, okay. And we already say that we cover the questions from 2019 to 2014, okay. In this session there are total 14 questions from this previous year's papers of CSR NET, and this is not only the questions from mathematical science paper. These questions are from any other science paper also, okay. So let's start, and before starting I am requesting you to all those who are new in my channel, please like, comment, and if the video is helpful for you then consider subscribing to my channel, okay. So let's start. And previous वीडियो में तो हम लोग क्या करते हैं, फाइंडिंग ऑफ एक्स प्रॉब्लम करे थे, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो का लिंक मैंने यहाँ पर आइटम में डाल दूंगा, या यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी आप लोग जाके देख सकते हो, ठीक है। एंड एक सेपरेट प्लेलिस्ट है जो कि ये जनरल एप्टीट्यूड फॉर CSR नेट। इन दैट प्लेलिस्ट आई विल कवर द क्वेश्चंस फ्रॉम 2022 का जो 2 पेपर था एंड 2020 का जो पेपर था वो मैंने कवर किया, ठीक है। तो वो भी वहाँ पर सॉल्यूशंस मिल जाएगा, तो आप लोग देख सकते हो फॉर योर प्रैक्टिस बेटर फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। Now before going to the problems, I will go through once this concept. So average means what? Sum of the elements by the number of elements. You all know that. Weighted average mean, that is weighted arithmetic mean, if there are k number of elements of weight, k number of values of x1, x2 and xk with weights n1, n2 and nk, then this is the formula. I think you all know that. Geometric mean equal to nth root of x1, x2, xn. You all know that. And median, what is median? Median is the middle value of that middle value that separates the higher half from the lower half of the set of observations. That means a set of observations है, ठीक है। मीडियन का जो वैल्यू होगा वो सेट ऑफ मतलब लोअर वैल्यू एंड अपर वैल्यू को डिफरेंट मिडिल वैल्यू होगा, ठीक है। ये होगा मीडियन। एंड फॉर एग्जांपल सपोज इफ वी टेक द वैल्यूज, यहाँ पर जो वैल्यूज है 8, 5, 6, 3 एंड 12, एंड हियर इफ वी राइट दिस एंड मीडियन फाइंड करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे ये जो वैल्यूज होगा इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा, एंड मिडिल वैल्यू जो होगा वो देगा मीडियन, ठीक है। तो फॉर एन ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज 1 median we get, but for an even value suppose 2, 4, 6 and 8, these two sum of these two values and average of these two values gives the median, okay। That is in this case median क्या होगा, median होगा 4 plus 6 by 2, that is the 5 होगा इस सेट का मीडियन, ठीक है। मोड क्या होगा, द मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अपीयरिंग वैल्यू इन द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। दैट मीन्स कोई एक ऑब्जर्वेशन में कोई एक वैल्यू जो हाईएस्ट टाइम रिपीट करेगा मतलब ऑकर करेगा वही होगा सेट का मोड, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन दिस सेट 1, 2, 3, 2, 2, 5, 2 देखो 3 बार रिपीट हुआ है, ठीक है, मतलब हाईएस्ट बार रिपीट हुआ है 2, तो 2 होगा इसका मोड, ठीक है। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, वेरिएंस, वी ऑल नो दैट वेरिएंस मीन्स 1 by n summation xi minus mean whole square, mean 1 by n is the n, this n is the total number of observations, okay, and standard deviation means the square, positive square root of variance, okay। So these are the just one's concepts. So now we're going to question number 1 from the CSR NET December 2019 section, okay। So it says that the mean of a set of 10 numbers is m, okay। By combining with the second set of m numbers, the mean of the combined set becomes 10. What is the sum of the second set of numbers, okay। Suppose there are 10 numbers, suppose x1, x2 to x10, okay, and the mean is what, 10, that means summation xi I equal to 1 to 10 by 10, this value is equal to m, okay। That means can write here summation xi and जो 10 x का सम है, ठीक है, वो क्या होगा 10 m होगा, ठीक है। तो ये सपोज 1। नाउ बाय कंबाइनिंग द सेकेंड m numbers, so suppose second m numbers are y1, y2 and ym, okay। The mean of the numbers becomes 10, that means summation I equal to 1 to m yi by total m numbers, this is 10, okay। Now what is acha combining this, that means what, no this is not, this is total, okay, summation yi plus summation xi I equal to 1 to 10
by total number of elements is m plus 10. Okay, so this is equal to 10 because these are m numbers in total, these are 10 numbers in total. Therefore average means sum of the total numbers by number of sum of the elements by number of the elements. So these are the sum of the elements by the number of the elements. Okay, so we have to find the value of what is the sum of the second set of numbers. That means we have to value of this sum. So we first write summation yi I equal to 1 to m plus summation xi I equal to 1 to 10. This is equal to 10 into m plus 10. Okay, and this value is by using 1 summation xi equal to 10m. So this gives summation yi I equal to 1 to m plus 10m. This is equal to 10m plus 100. So 10m goes to cancel from both sides. Therefore the sum of the second set of elements is clearly 100. D is the answer. Going to the next question, it says that the result of a survey is to find the most preferred leader among A, B, C is shown in the table. First and second and third preference are given weights 3, 2 and 1. That is, ये जो A का जो होगा वेट कितना होगा, 1 वोट का होगा 3, इसका जो वेट होगा 1 वोट का होगा 2 एंड इसमें 1 वोट का वेट होगा 1. ओके, रेस्पेक्टिवली. Statistically, which one of the following can be said the represent the preference of the voters? A and C and within 10%, B is most preferred, C is most preferred, B and C are 10%. Now A का जो वोट है इसका प्रेफरेंस कितना है, तो देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्रेफरेंस. सो फर्स्ट प्रेफरेंस में मतलब हर एक एलिमेंट को 3 टाइम्स मल्टीपल होगा, ठीक है, इंटू 3. ओके, एंड सेकेंड जो प्रेफरेंस है उसका वेट क्या है 2. सो यहाँ पे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा इंटू 2 एंड यहाँ पे 1 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, ठीक है. तो इसका टोटल कितना होगा, मतलब 39 प्लस 48 प्लस 63. आई थिंक इसका जो वैल्यू होगा वो होगा 150. एंड सेकेंड केस में 54 इंटू 2 54 इंटू 3 जो होगा क्या होगा, सॉरी 54 इंटू 3. जो सेकेंड केस में इसका सम क्या होगा, देखो इसका सम होगा 162 प्लस 37 टू 74 प्लस 9. तो इसका जो वैल्यू होगा 245. एंड इन केस ऑफ सी ये जो सम होगा तीनों के तीनों, ये क्या होगा, सम जो होगा वो होगा 205. दैट मीन्स हु इज द मोस्ट प्रेफर्ड कैंडिडेट, हु गेट्स द मोस्ट मोर वोट, दैट इज बी. ओके, so in the option B it says that B is the most preferred candidate. Okay, so B is most preferred, obviously correct. Going to the next question, this is question number 3 and this is comes in June 2019. Okay, and this questions देखो यहाँ पर दिसंबर का 2 क्वेश्चन है, मतलब ये मतलब 2 कोई पेपर में जो पेपर में आया था, ठीक है. सपोज ये जो क्वेश्चन सपोज आया था मैथमेटिकल पेपर का हो सकता है. देखो ये जो पेपर ये सपोज मैथमेटिकल साइंस का है, ये जो पेपर है ये कोई दूसरा पेपर का हो सकता है, ठीक है. ऐसे क्वेश्चन जो है सपोज लाइफ साइंस का हुआ तो ऐसे हो सकता है. नाउ जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, अ स्टूडेंट रिसीव द फॉलोइंग मार्क्स इन द 5 of the 6 courses 91, 86, 81, 79 and 92. Average of his marks in the 6 subjects is 85. Okay, so how many marks did he receive in the 6th subject? तो देखो इसको हम लोग फॉर्मूला से नहीं करेंगे, इसको करेंगे लॉजिकली. तो देखो 85 6 सब्जेक्ट का एवरेज होगा, ठीक है. तो 91 से ये जो एवरेज होगा इसका डिफरेंस क्या है, इसका डिफरेंस है मतलब इसका डिफरेंस है +6, ठीक है. देन +1, देन ये जो 81 से डिफरेंस क्या है -4, देन इससे क्या डिफरेंस है 82 से -3 एंड 92 का जो डिफरेंस है 85 से वो क्या है, सॉरी 85 से 79 का डिफरेंस है -6 एंड 92 का डिफरेंस है +7, ठीक है. तो देखो ये सारे को ऐड करते हैं कितना आता है 6 + 1 -4 -6 +7, तो कितना आया 6 7 7 14 -10, तो ये हो गया 4. तो देखो ये जो 4 मार्क्स आ रहा है, तो इस 4 मार्क्स को जो 6 सब्जेक्ट होगा वो बैलेंस करेगा. कैसे करेगा, एवरेज मार्क्स है 85 यहाँ पे जो एवरेज 85 मिलकर भी
4 एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। तो ये जो 4 होगा 6 सब्जेक्ट में इस 4 मिला के 85 होगा, ठीक है। तो वो कौन सा ऑप्शन है, देखो यहाँ पर इसके साथ 4 ऐड किया तो 85 होगा, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा होगा सी, ठीक है। आई थिंक यू कैन डू इट। इफ देयर आर -4 कम्स देन वी शुड टेक, दैट मीन्स क्या होगा, ये जो -4 मार्क्स है इसको कौन सा जो 6 सब्जेक्ट होगा वो बैलेंस करेगा, मतलब 6 सब्जेक्ट का मार्क्स कितना होगा, 6 सब्जेक्ट का इन दैट केस मार्क्स जो होता है वो होता 85 + 4 89। okay, I think you should clear this. Now going to the question number 4, it says that the 9 numbers x1 x2 and these are suffix, x1 x2 x3 and x9 are the ascending order. If and now ascending order means what, x1 is greater or equal to x2 you can write, then we say that these are ascending number. Okay, their average m is strictly greater than all the 8 numbers. देखो their average is strictly greater than ऑल द फर्स्ट 8 नंबर्स, तो फर्स्ट 8 नंबर्स क्या होगा, सेम नंबर होगा। एंड यहाँ पे भी बोला है असेंडिंग, तो इस ये रिलेशन कैसा होगा, एक नंबर से दूसरे नंबर तक ग्रेटर इक्वल टू, सो वी कैन चूज और वी कैन टेक द फर्स्ट 8 नंबर सेम डिजिट। सपोज वेरी क्लियरली वी कैन टेक वेरी इजीली 1, फर्स्ट 8 डिजिट्स आर 1, ओके, फर्स्ट 8 डिजिट्स आर 1, देयर एवरेज इज स्ट्रिक्टली एंड 9 यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई एक ले लो, सपोज यहाँ पे ले लेते हैं 10 या 9 ले लेते हैं, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बोला है x1 x2 x9 एंड m, एंड m क्या है, द एवरेज m, ओ एवरेज इज m, दैट मीन्स m इक्वल टू क्या होगा, ये जो सम होगा 8 + 9/2, इसको ऐसे ले लेते हैं कि 8 + 9 जो होगा यहाँ पे 9 से डिवाइड होगा, तो कैसे लेंगे इसको, एक मार्क्स जो अच्छा होगा सपोज 10 लेते हैं तो 18 आ जाएगा ना, 18 आ जाएगा, तो ये इंटीजर वैल्यू लेगा। ये मतलब हम लोगों का सुविधा के लिए हम लोग यहाँ पे ऐसे कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। एंड जो बोला है x2 मतलब x1 को छोड़ के जो एवरेज होगा वो क्या होगा, इच कंडीशन में दिया है। तो यहाँ पर 7 फर्स्ट 7 8 होगा, देन होगा 10 एंड जो होगा, एंड यहाँ पे और एक था आई थिंक, जस्ट अ सेकेंड, एम भी था यहाँ पे, ठीक है, एम था ईच एंड एवरी ऑप्शन में। एम का वैल्यू क्या है, 2 आया है, ठीक है, 2 बाई ये क्या होगा, जो नंबर तो 8 9 ही था, 7 ये 7 नंबर से 8 एंड 9, टोटल नंबर है 9, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टर्न छोड़ कर ले रहा है, ठीक है, x2 x3 x4 2 x9, मतलब यहाँ पे टोटल 8 है, एंड ये जो आया है एम टोटल 9 नंबर से, ठीक है। तो 19 upon 9, that means this is, we can say that this is strictly greater than 2, okay, therefore क्या होगा यहाँ पे एवरेज तो m के मतलब इक्वली आएगा, m लेकर भी, ठीक है। देखो जस्ट अ सेकेंड, एंड वन मोर थिंग यहाँ पर इसको भी लेना होगा, तो 2 देखो ये x1 x2 x9 एंड m, तो x8 तक कितना होगा, 8 + 8 9 मीन 10 + 2, ठीक है, m का वैल्यू, ठीक है, m का वैल्यू यहाँ 2 लिखा है, एंड टोटल नंबर क्या होगा 8 9 10, टोटल नंबर होगा 10, तो इसका वैल्यू होगा 2, ठीक है। तो एवरेज ऑफ जो x1 x2 xm को ले लेंगे यहाँ पे, तो इसका वैल्यू क्या होगा 2 होगा, एंड देन x1 को छोड़ के x2 से x9 तक एंड m ले लेंगे, तो क्या होगा, इसका वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगा, दैट मीन्स ग्रेटर देन m ईयर। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, यहाँ पर ऑप्शन सी ट्रू होगा, ठीक है। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 5, इट सेज दैट द लेंथ ऑफ ए सिलेंडर इज मेजर्ड 10 टाइम्स यील्डिंग 10 डिस्टिंक्ट वैल्यूज, मतलब 10 टाइम्स यहाँ पे मेजर कर रहे हैं सिलेंडर को, एंड ये 10 डिस्टिंक्ट वैल्यूज आ रहा है, ठीक है। फॉर दिस सेट ऑफ वैल्यूज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 5 of these values will lie above the mean and 5 below it, 5 of these values will lie above the median and 5 below it, at least one value will above the mean and at least one value will lie in the median, at the median। तो देखो फर्स्ट चलते हैं डी ऑप्शन की तरफ, ठीक है। तो मीडियन क्या था, मीडियन जो होगा मिडिल वैल्यू, ठीक है। तो देखो एटलीस्ट वन वैल्यू लाई एट द मीडियन, दैट मीन सपोज यहाँ पर 10 वैल्यू ले रहे हैं हम, यहाँ पे हम लोग क्या करें, सपोज 3 वैल्यू लेके काम चला सकते हैं, ठीक है। तो 10 टाइम्स के जाके हम लोग यहाँ पे 3 टाइम्स लेके देख रहे हैं क्या होता है। सपोज देखो क्या होगा मीडियन, तो 1 एंड सपोज ले लेते हैं 4 एंड 2, ठीक है, एटलीस्ट वन वैल्यू लाई इन द मीडियन। तो ये सपोज 3 टाइम्स जो आया मेजरमेंट आया, तो इसका मीडियन कितना होगा, इसका मीडियन होगा
जो होगा 1 2 एंड 4, 4 वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पे, देखो 1 2 4 एंड 6 ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे 1 + 3 2 3 एंड, तो इसको मतलब रखेंगे तो क्या होगा 1 2 4 एंड 6, देखो 2 + 4/3, so 3 होगा इसका मीडियन, बट 3 इस सेट में तो नहीं है, तो इस ऑप्शंस का हम लोग डिस्कार्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो डी स्टेटमेंट तो ट्रू नहीं होगा, तो डी स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा तो ये तो नहीं होगा, जहाँ जहाँ पे डी है वो तो कभी भी नहीं बनेगा, ठीक है। नाउ इफ वी गो टू विथ ऑप्शन ए, 5 ऑफ दिस वैल्यूज विल लाई अबव द मीडियन एंड 5 बिलो इट, तो हम लोग यहाँ पे 3 लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो देखो मीन क्या होगा, सपोज लेते हैं 1 2 एंड 3, जो वैल्यू ले रहा है यहाँ पे 5 लेते हैं, ठीक है। तो देखो इसका मीडियन मीन कितना होगा 5, 8/3 होगा इसका मीन, 8/3 मीन्स 4 टाइम्स सॉरी 2 पॉइंट समथिंग होगा, 2 पॉइंट समथिंग मीन्स ए यहाँ पर रहेगा, तो यहाँ पर बोला है देखो 5 मतलब आधा इधर रहेगा आधा उधर रहेगा, बट यहाँ पे क्या है 2 वैल्यू मीन के लेफ्ट साइड में आ रहा है एंड 1 वैल्यू लेफ्ट के साइड में आ रहा है, तो ऐसे भी मतलब ये इस केस ऐसे हम लोग एग्जाम्पल सेट करेंगे कि सपोज 8 वैल्यू आ जाएगा लेफ्ट की तरफ एंड 2 वैल्यू आ जाएगा राइट की तरफ, मीन यहाँ पर लाई करेगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इसको फॉर्मेटिंग करेंगे ऐसे वैल्यू लेके, बट यहाँ पे कोई वैल्यू लेके करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन डिस्कार्ड कर सकते हैं हम, मतलब ए जहाँ पर होगा वो भी डिस्कार्डेड हो जाएगा, तो देखो ये वहाँ पर बी ए है तो ये भी डिस्कार्डेड होगा, दैट मीन्स और करेक्ट आंसर होगा आंसर ए, ठीक है। If we see in this type of question that we can discard the options, then obviously the answer or the option which is remaining in our answer or options, this is the mostly correct answer and obviously correct answer, okay. Now going to the question number 6, it says that for the following set of observed values, this 60 65 65 70 70 70 70 and these, which of the following statements are true। तो देखो मीडियन मतलब ये देखो ये मतलब असेंडिंग ऑर्डर में ही है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में ही है, दैट मीन्स क्या होगा यहाँ पे मिडिल जो वैल्यू होगा वो होगा मीडियन, तो मिडिल वैल्यू क्या है, कितना वैल्यू है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, ठीक है 15, मतलब जो 8th वैल्यू होगा 8th, ठीक है, तो वो होगा मीडियन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये होगा मीडियन, ठीक है। एंड मोड कितना होगा, मोड होगा जो वैल्यू यहाँ पर मतलब मोड टाइम्स आया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 70 हाईएस्ट टाइम्स आया है 4 बार, दैट मीन्स मोड क्या होगा, मोड होगा 70, ठीक है, मोड हो जाएगा 70 इसका। एंड इसका मीन क्या होगा, मीन तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू थोड़ा इधर उधर है, जैसे मैं मीन यहाँ पे जस्ट लिख देता हूँ, ठीक है। मीन जो होगा इसका मीन होगा अप्रोक्सीमेटली 89, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब बड़ा होगा यहाँ पे मीन, उससे छोटा वैल्यू क्या होगा, उससे छोटा होगा 82 वाला मतलब मीडियन, एंड देन होगा मोड, तो ये इनइक्वालिटी फॉलो करेगा, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। मीन तो सिंपली आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, ये सम एंड डिवाइडेड बाई 15, सम ऑफ दिस नंबर्स डिवाइडेड बाई 15, तो ये आ रहा है 89 के आसपास, ठीक है। तो ये होगा इसका आंसर ऑप्शन ए। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इट सेज दैट द एवरेज रेनफॉल ओवर अ गिवन प्लेस ड्यूरिंग द 3-year पीरियड। देखो रेनफॉल 3-year पीरियड मतलब एक जो पीरियड होगा उसमें 3 ईयर आएगा, ठीक है, वाज 65 2003 टू 2005 तक, मतलब एवरेज कितना है 65। ड्यूरिंग द 3-year पीरियड 2002 to 2004 एवरेज रेनफॉल इज 63, द एक्चुअल रेनफॉल ड्यूरिंग 2005 इज 60, व्हाट इज द रेनफॉल इन 2002। तो ईयर कहाँ से कहाँ तक है, 2002 2003 2004 एंड 2005। देखो यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू एक में दिया है वो है 60 इन 2005। सपोज यहाँ पे एक्स क्वांटिटी है, यहाँ पे वाई है एंड यहाँ पे जेड है। तो जो फास्ट बोला है 2003 टू 2005 होगा 65, तो ये तीनों का एवरेज क्या होगा 65, वाई प्लस जेड प्लस 60/3 होगा 65, वाई प्लस जेड
प्लस 60 का वैल्यू क्या होगा 195 या 195 या सो y प्लस जेड का वैल्यू क्या होगा 195 माइनस 60 जो होगा 135 okay y plus z and it says that during the 3 year period 2002 to 2004 so ये जो तीनों है इस तीनों का कितना है एवरेज रेनफॉल 63 that means x plus y plus z by 3 is equal to 63 that means x plus y plus z equal to 189 y plus z का वैल्यू हम लोग जानते हैं तो x plus 135 equal to 189 तो x का वैल्यू कितना है x से 189 माइनस 135 जो क्या है 54 एंड क्या यहाँ पे रेनफॉल 2002 का ही बोला है दैट मीन्स एक्स का वैल्यू मतलब फाइंड करना है तो इसका वैल्यू क्या होगा इसका वैल्यू होगा C24 ओके नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द एवरेज एज ऑफ A B and C whose ages are in integers x y and z respectively and x less than equal to y less than equal to z okay is 30 average age of ABC is 30 मतलब x y and z if the age of B is exactly 5 more than the age of A what is the minimum possible value of z तो यहाँ पर क्या बोला है average age of the age of B is exactly 5 more than that of A and A का एज कितना है x बोला है B का है y एंड C का है Z ठीक है एज जो B का है y का वैल्यू क्या है मोर देन दैट ऑफ A दैट मीन्स y इक्वल टू x प्लस 5 ठीक है एक आया रिलेशन एंड एवरेज एज कितना है एवरेज एज है 30 ठीक है तो देखो यहाँ पे x प्लस y प्लस z बाई 3 एवरेज एज है 30 y इक्वल टू x प्लस 5 रख सकते हैं यहाँ पे ठीक है सो x प्लस 5 plus z by 3 is equal to 30 okay so we can write here that 2x plus z plus 5 is equal to 90 ठीक है okay we can write 2x प्लस जेड इज इक्वल टू 85 ठीक है 2x प्लस जेड को 85 लिख सकते हैं यहाँ पे देखो नाउ इफ वी गो थ्रू ऑप्शंस ओके व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ जेड ठीक है तो जेड का वैल्यू 31 लिया तो क्या होगा इफ वी पुट हियर 35 तो जेड इक्वल टू 31 हुआ तो क्या होगा तो 2x प्लस मतलब z का वैल्यू लेके देख रहे हैं यहाँ पे जो x एंड y का वैल्यू है वो उसको एक्सीड ना कर जाए ठीक है तो ऐसा जो पॉसिबल होगा वही होगा z का वैल्यू ठीक है तो देखो 2x प्लस 31 इक्वल टू 85 तो 2x इक्वल टू क्या होगा 85 माइनस 31 मतलब ये जो होगा 4 एंड 5 54 तो x का वैल्यू क्या होगा 27 होगा एंड x का वैल्यू 27 होगा तो y का वैल्यू क्या होगा y का वैल्यू हो जाएगा 27 प्लस 5 जो है 33 बट यहाँ पे जो है y का वैल्यू z को एक्सीड कर रहा है ठीक है तो ये तो वैल्यू कभी भी नहीं बनेगा ठीक है एंड नाउ इफ वी टेक z का जो एज है वो लेते हैं 33 ठीक है तो x का वैल्यू क्या आएगा फ्रॉम दिस इनइक्वालिटी तो 2x इज इक्वल टू 85 माइनस 33 क्या आएगा 2 एंड 5 52 तो x का जो वैल्यू आएगा 626 नाउ y का वैल्यू क्या आएगा y इक्वल टू आएगा 26 प्लस 5 विच इक्वल टू 31 तब देखो ये जो कंडीशंस है ये कंडीशंस में देखो x लेस इक्वल टू y लेस इक्वल टू z होल्ड कर रहा है दैट मीन्स z का जो पॉसिबल वैल्यू होगा B33 ठीक है नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दिस क्वेश्चन 9 सेज दैट a fuel station sold diesel costing 15,000 to 150 persons on a day if the lower limit of the sale person is 50 then what is the maximum amount of rupees for which the person could have purchased diesel on that day देखो यहाँ पे मिनिमम जो है 50 रुपीज़ है एंड
150 पर्सन्स को एक डे सेल कर सकते हैं, एंड कितना रुपीज़ का, 15,000 रुपीज़ का। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट, तो एक लोग मतलब एक पर्सन कितना हाईएस्ट अमाउंट का डीजल खरीद सकता है, ये इसका क्वेश्चन। तो यहाँ पे सीधा सीधा इसको डिवाइड कर दो 150 को 149 प्लस 1, क्योंकि यही जो होगा 149 को 50 डीजल को ईच बेच दो, एंड ये जो 1% है इसको ज़्यादा दे दो, तो ये हो जाएगा सबसे हाईएस्ट। ठीक है, क्योंकि 50 तो मिनिमम प्राइस है, लोअर लिमिट है, तो 50 तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, एंड 50 149 को देंगे तो ये जो 149 पर्सन्स का जो टोटल अमाउंट होगा वो मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, एंड ये जो एक पर्सन्स का होगा तो वो मैक्सिमाइज हो जाएगा, क्योंकि यही आंसर मतलब फाइंड करना है इस प्रॉब्लम में। ठीक है, तो देखो क्या होगा, 149 इंटू 50 पर्सन्स को दिया तो 50 को दिया तो क्या होगा, इसका जो आंसर होगा 7550 आई थिंक। ठीक है, 7450 होगा इसका प्रोडक्ट। ठीक है, एंड जो है तो ये 159 का प्राइस होगा टोटल ये। ठीक है, ना वन जो बंदा है उसको कितना रुपीज़ का मिलेगा, तो इसको मिलेगा 15,000 माइनस 7450 का, तो दैट मीन्स क्या होगा 7550 का डीजल इस मतलब एक पर्सन को मैक्सिमम मिल सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 7550, आंसर सी। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, इट सेज दैट ए बर्ड्स flies along the three sides of a field in the shape of an equilateral triangle। तो सपोज ये तो ये है, सपोज इक्विलैटरल ट्रायंगल, सपोज ये जो लेंथ है इसका एल एंड एल है। ठीक है, एट स्पीड्स ऑफ 2, 4 एंड 8 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली, द एवरेज स्पीड ऑफ द बर्ड इज। तो देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय क्या होगा, टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या है 3l एंड टोटल टाइम क्या है, तो देखो एक साइड में क्या स्पीड है ये रख रहे हैं, मतलब टाइम लगेगा इस साइड में l/2, इस साइड में लगेगा l/4 एंड इस साइड में लगेगा l/8। तो इस तीनों को सम कर दो, l/2 प्लस l/4 प्लस l/8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3l/8 हो जाएगा एलसीएम, 4l प्लस 2l प्लस l, तो ये हो जाएगा 3l इंटू 8 अपन कितना होगा 4 2 6 7, तो ये हो जाएगा 24/7, ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक एक बार आंसर को देख लेता हूँ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11, इट सेज दैट द एवरेज स्टाफ सैलरी ऑफ ए कंपनी इज 8,000 if a new guard and a new manager are recruited with salaries is this and this 5,000 and 20,000 respectively, what is the current staff strength if the new average salary is 4,000 more than that of the guard? That means strength means now the number of staff है कंपनी में वो कितना है। ठीक है, तो देखो सपोज कंपनी के जो स्टाफ है वो 1 है। ठीक है, तो टोटल सैलरी मतलब ये दोनों जो है गार्ड एंड मैनेजर ज्वाइन करने की पहले कितना था, वो था 8,000 x रुपीज, दिस इज टोटल सैलरी। ठीक है, टोटल सैलरी। नाउ अभी कितना लोग है x + 2, क्योंकि 2 लोग यहाँ पे ऐड हुआ है। नाउ अभी जो है टोटल सैलरी कितना है 8,000 x प्लस जो है गार्ड का कितना सैलरी है 5,000 प्लस मैनेजर का है 20,000, ये है टोटल सैलरी अभी। एंड जो क्या है यहाँ पे देखो टोटल सैलरी, तो एवरेज सैलरी कितना है यहाँ पे 4,000 मोर देन दैट ऑफ द गार्ड। तो गार्ड का सैलरी था मतलब 5,000 एंड अभी कितना हुआ है 5,000 प्लस 4,000 हुआ है एवरेज सैलरी, एंड यहाँ पे दिस इज द टोटल सैलरी। तो टोटल सैलरी को हम लोग नंबर ऑफ स्टाफ से डिवाइड करेंगे, मतलब x + 2 होगा, तो इसका वैल्यू होगा 9,000। ठीक है, तो 8,000 x प्लस 25,000 दिस इज इक्वल टू क्या होगा x + 2 इंटू 9,000, ये होगा 9,000 x प्लस 18,000, तो इसका वैल्यू क्या होगा
x इज इक्वल टू 7000, तो x का वैल्यू क्या होगा 7, ठीक है क्लियरली। एंड व्हाट इज द करेंट स्टाफ, दैट मीन्स अभी कितना है 2, मतलब इंक्रीज हुआ है तो क्या होगा 7 + 2 9 होगा इसका आंसर, x + 2 होगा, ठीक है बी आंसर इज करेक्ट वन। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इट सेज दैट the set of numbers 5 6 7 m 6 7 8 m has arithmetic mean of 6 and mode, that is the most frequently occurring number of is 7, then m into n what। now first m को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है m कितना होगा 5 + 6 11 + 7 18 + 6 24 + 7 31 + 8 39, तो 39 + m + m ये होगा टोटल सम बाय नंबर ऑफ सेट में नंबर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 4 4 8, ठीक है ये हो जाएगा एरिथमेटिक मीन। ओके तो एरिथमेटिक मीन दिस इज इक्वल टू 6, तो देखो m + n का वैल्यू क्या होगा 2m, सॉरी आई थिंक दिस शुड बी m and n, this is n, okay this is n, तो this is n, तो m + n का वैल्यू क्या होगा 48 - 39 ये हो जाएगा 7, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक चीज बोला है कि मोड है, मोड क्या है 7, दैट मीन्स जो है 7 मैक्सिमम टाइम ऑकर करेगा, ठीक है। तो देखो एक बात यहाँ पे देखो 6 कितना टाइम है यहाँ पे 1 2 टाइम्स 6 है एंड 2 टाइम्स 7 है, ठीक है 7 को मोड होना पड़ेगा तो एटलीस्ट वन ऑफ m and n मस्ट बी 7, क्योंकि 7 तभी 3 टाइम्स आएगा, ठीक है 7 7 7, एंड नहीं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कोई दूसरा नंबर रखे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मोड चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मोड को 7 रखने के लिए यहाँ पे एटलीस्ट 1 m या n को 7 रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सपोज कोई एक वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं 7, सर ये तो 9 हो गया, तो सपोज m = 7 रख देते हैं, ठीक है तो n = क्या हो जाएगा 9 - 7 = 2। यहाँ पे आप लोग यहाँ पर n को भी 7 रख सकते थे, कोई बात ऐसा बात नहीं, तो इन दैट केस m = 2 आ जाएगा, तो दैट मीन्स m and n का प्रोडक्ट क्या होगा 2 × 7 मीन्स 40, ठीक है तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इट सेज दैट if you change only one observation from the set of 10 observations, which of the following definitely change, mean, median, mode and standard deviation, ठीक है। तो फर्स्ट आते हैं मीन की केस में, तो मीन की केस में क्या होता है समेशन जो होता है एक्सरसाइज होता है एंड नंबर ऑफ एक्सरसाइज होता है। सपोज यहाँ पर i = 1 to n है तो यहाँ पे n ही होगा, ठीक है n ऑब्जर्वेशन का सम बाई n। तो देखो एक ऑब्जर्वेशन चेंज हुआ तो ये जो सम होगा ये तो मस्ट चेंज होगा ही होगा, एंड ये सम चेंज होगा तो ये क्या होगा जो है समेशन xi/n ये तो चेंज होना ही है, ठीक है ये चेंज होगा तो ये तो चेंज होगा ही, तो मीन तो ऑब्वियसली चेंज होगा ही होगा, कोई भी चेंज हो या ना हो। तो यहाँ पर डेफिनेटली आंसर आ जाएगा मीन ही चेंज होगा, ठीक है क्योंकि यहाँ पर जो है न्यूमरेटर चेंज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है वेट्स इन kg ऑफ 30% आर दिस, ठीक है जी। तो देखो 2 न्यू पर्सन्स हैविंग वेट्स 100 and 79 join in the group, ठीक है द एवरेज वेट ऑफ द ग्रुप इंक्रीज बाई। तो यहाँ पे देखो क्या क्या है 70 72 74 76 78 80 82, तो यहाँ पर तो ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखा है, ठीक है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है एंड कितना वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 वैल्यू है, ठीक है तो 8th जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा इसका मीडियन, ठीक है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सॉरी 7th जो वैल्यू होगा दैट इज 82, तो इसका जो मीडियन हो जाएगा मिडिल वैल्यू क्या होगा 82, ठीक है दैट मीन्स मीडियन। नाउ द एवरेज ऑफ द ग्रुप, जस्ट अ सेकंड आई थिंक आई मिस्टेक एनीथिंग, और एक थिंग यहाँ पे नोटिस करना है, देखो ईच जो वेट है वो यहाँ पे 2 डिफरेंस में दिया है, ठीक है 2 डिफरेंस में दिया है, मतलब ईच एंड एवरी वेट का डिफरेंस क्या है
यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे इजीली हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसका जो मीन होगा वो भी 82 ही होगा। आप लोग यहाँ पे साम करके चेक कर सकते हो, क्योंकि देखो ये जो मिडिल का डिफरेंस है वो ईच एंड एवरी वैल्यू में डिफरेंस 2 ही है, एंड यहाँ पे 82 जो है वो मिडिल का वैल्यू है, तो 82 ही इसका मीन भी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे और एक चीज देखते हैं कि देखो ये तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो मैथमेटिकली फास्ट, ये जो साम है इसको एवरेज बेर कर मतलब फाइंड करके, देन ये जो दो वैल्यू ऐड करके, देन उसका मतलब मीन बार मतलब फाइंड करके, देन वहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो। बट यहाँ पे ये जो तरीका मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वो देखो, तो देखो 82 से 100 का कितना वैल्यू डिफर करता है 18, ठीक है, प्लस 18, एंड 79 में कितना वैल्यू डिफर करता है -3, मतलब टोटल जो वैल्यू डिफर करेगा वो क्या होगा, इस दोनों को ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा इसका वैल्यू जो डिफर करेगा, मतलब क्या करेगा 82 मतलब हो तो 15 वैल्यू यहाँ पर एवरेज जो है रह जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे टोटल परसेंटेज नंबर ऑफ पीपल क्या है 13 है, एंड 2 ऐड हुआ तो कितना होगा 15 होगा। तो ये जो 15 वैल्यू है, ठीक है, 15 इंक्रीज हुआ विद रेस्पेक्ट टू हाउ मेनी पीपल 15 पीपल, दैट मीन्स 1, दैट मीन्स जो इंक्रीज होगा वो क्या होगा 1 kg होगा सिंपली, ठीक। तो आप लोग यहाँ पे इसको मैथमेटिकली ऐसे भी कर सकते हो कि इसका जो मीन है निकालो फर्स्ट, देन क्या करो ये जो सम आएगा उसके साथ 100 प्लस 79 भी ऐड करो, उसको 15 से डिवाइड करो, जो वैल्यू आएगा इसका जो वैल्यू आएगा सपोज ए आया एंड फर्स्ट का जो आया था सपोज बी आया था, तब लोगों को ए माइनस बी का वैल्यू निकालना है यहाँ पे, ठीक है, क्या होगा एंड ये 1 ही आएगा, ठीक है। तो so these are the 14 questions, okay, so these are the 14 questions from the chapter average from the previous years of CSIR NET 2019 to 2014, okay. So I think you should practice these sessions, and these sessions are very helpful for practicing the CSIR NET general aptitude or part A sections, and I'll cover topic by topic or chapter wise PYQs of this CSIR NET problems, okay. So I think this sessions is also helpful for you, and obviously this is number 2 sessions. First sessions is on finding the X problem, so we will cover one by one chapter wise the PYQs of the CSIR NET, okay. So thank you for watching, and if this helps you a little bit, then obviously give a like to this session, comment if you have any doubt in the comment section below, and if you like the video then obviously consider subscribing to my channel, okay. Thank you friends, मिलते हैं कोई दूसरा वीडियो, okay, bye bye.